وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नास समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह अहकाफ शुरू कर रहे हैं। हामीम, ये किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है, जो इतना गालिब है कि अपने फैसले नाफिज कराने की पूरी सलाहियत रखता है, इतना हिकमत वाला है कि इसे अपने फैसले तब्दील करने की जरूरत पेश नहीं आती।
ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے جو وہ ڈرائے گئے منہ موڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تم جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا، یا انہوں نے آسمان کی تخلیق میں سے ان کی کیا شراکت ہے۔ میرے پاس اس سے قبل کی کوئی کتاب الہی یا کوئی علمی روایت میرے پاس لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ ارض و سما میں سے اگر تم اللہ کے شریکوں کی کسی تخلیق کی جانب اشارہ نہیں کر سکتے اور نہ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو تو پھر اللہ ان کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ یا تو میرے پاس مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان میں کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو پھر کم از کم مجھے کوئی پہلی کسی کتاب میں سے یا اس قرآن مجید میں سے اللہ کی کوئی واضح سند دے دو جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ ان معبودان کو میں نے یہ اختیارات دے رکھے۔ اس کے برعکس قرآن مجید تو چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ معبودان باطل جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ تو مردے ہیں، یہ تو زندہ بھی نہیں، اور یہ تو یہ بھی نہیں جانتے ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، یہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہو جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ میرے پاس اس سے قبل کوئی کتاب جس میں اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا کوئی علمی روایت میرے پاس لے آؤ اگر تم ان کی عبادت کرنے میں سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ دعا کو قبول کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دعا سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کرتا ہے۔ جو تمہارے معبودان باطل ہیں وہ تو دعا سننے سے بھی عاجز ہیں، کجا یہ کہ سننے کے بعد تمہاری حاجت روائی کر سکیں۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ ایسے معبود جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے اور جو ذی روح ہیں وہ تو برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی ہمیں ان کی عبادت کا علم تھا۔ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے کہ کیا عیسیٰ تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا، میں نے تو انہیں صرف یہی کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اور جب تک میں ان کے اندر رہا میں اس بات کی نگرانی کرتا رہا، میرے بعد اگر انہوں نے شرک کیا تو اللہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور جب ان کے اوپر ہماری واضح نشانیاں پڑی جاتی ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں، حق کو کہتے ہیں جب ان کے پاس آئے یہ تو واضح جادوگر ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ اگر میں نے اللہ کا نام لگا کر اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے خود سزا دے دے گا، تم مجھے اس کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ وہ زیادہ جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہوتے ہو۔ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ بخشنے والا اس طرح ہے کہ تمہاری تمام گستاخیوں اور تمہاری تمام کرتوتوں کے باوجود تمہیں ڈیل دیے چلا جا رہا ہے۔ میں اگر جھوٹا ہوتا، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوتا تو اللہ کا عذاب مجھے آ پکڑتا۔ تم دیکھتے ہو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آتا بلکہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، اور انہی کفار نے دیکھ لیا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی غلبہ عطا فرما دیا۔
وہ اللہ मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। कह दीजिए मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ और मैं ये नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और ना मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो वही मेरी तरफ की जाती है और मैं तो सिर्फ एक वाज़े डराने वाला हूँ। ना तो मैं दुनिया में पहला रसूल हूँ, बेशुमार रसूल गुजर चुके हैं, न मेरी दावत निराली है बल्कि पहले रसूल मेरी बशारतें भी देकर गए हैं। कुरैश आपसे चूंकि तरह तरह के मुतालिबात और सवालात करते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप ऐलान कर दीजिए कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पल पल की खबरें दिया करूँ। असल बात यह है कि मुझे जिस चीज का वही के जरिए इल्म दिया जाता है मैं बस वही जानता हूँ और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम्हें वाज़े तौर पर डरा दूं। कह दीजिए भला देखो तो अगर ये अल्लाह की तरफ से हो और तुम इसका इनकार कर दो और बनी इसराइल में से भी एक गवाह ने इसकी गवाही दे दी हो तो वो तो ईमान ले आया और तुमने तकब्बुर कर दिया। जरा देखो तो ये कुरान या ये वही या ये जो दीन जो मैं पेश कर रहा हूँ अगर ये वाकई अल्लाह की तरफ से हो और जबकि तुम इसका इनकार कर चुके हो, जबकि बनी इसराइल के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, उनके पास बशारतें मौजूद थी, कई बनी इसराइल के लोग इस पर ईमान भी ले आए थे तो वो इस पर गवाही भी देने वाले हैं, लेकिन वो तो ईमान ले आए और तुमने तकब्बुर कर दी। अल्लाह ताला तुम जैसे जालिम कौम को हदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने कुफर किया वो ईमान वालों से कहते हैं अगर ये दीन अच्छा होता तो ये हमसे सबकत ना ले जाते। जब उन्होंने खुद हदायत नहीं पाई तो वो जल्दी कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। और इससे कबल हजरत मूसा की किताब इमाम और रहमत थी और ये किताब तस्दीक करने वाली है, अरबी जुबान में है ताकि उन लोगों को डराए जिन्होंने जुल्म किया और खुशखबरी है नेकी करने वालों के लिए। कुरान से कबल अल्लाह ताला ने तौरात उतारी थी, वो लोगों के लिए हदायत और रहमत थी। अब कुरान मजीद उस तौरात की भी तस्दीक कर रहा है और ये लोगों को अल्लाह के अजाब से जालिम लोगों को डराता है और नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरी देता है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए तो उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना हो वो गम खाएंगे। हमने आज ही पढ़ा था कि जिन लोगों ने कह दिया हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उन्हें कहते हैं ना डरो ना गम खाओ, अल्लाह की रहमत की बशारत कबूल कर लो। और वो फरिश्ते उनसे ये भी कहते हैं हम तुम्हारी दुनिया में भी दोस्त हैं, तुम्हारे आखिरत में भी दोस्त हैं। तुम्हें जन्नत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं, तुम्हें जन्नत में मनपसंद ख्वाहिशात के मुताबिक मिलेगा और तुम्हें जन्नत में जो तुम मुतालबा करते हो वो भी मिलेगा। यहाँ पे अल्लाह ताला अपना वो वादा दोबारा दोहरा रहे हैं कि जो लोग कह दें हमारा रब अल्लाह है और उसके बाद डट जाते हैं, डगमगाते नहीं हैं, तो फिर उन लोगों के लिए ना तो कोई दुनिया में खौफ है और ना ही वो गम खाएंगे। ऐसे लोग जन्नत वाले हैं जिनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। ये उस चीज का बदला होगा जो वो अमल करते थे और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसको बड़ी मुशक्कत से पेट में रखा और उसको बड़ी मुशक्कत से जना और उसका हमल और उसका दूध छुड़ाना इस पे 30 महीने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपनी भरपूर जवानी को पहुंचा और 40 साल की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा है मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर की, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए और मेरी औलाद में भी इस्लाह कर दे। मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की दीन में बहुत ताकीद की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह मेरे नेक अमल का, मेरे हुस्न सलूक का कौन मुस्तहिक है? आपने फरमाया तेरी माँ।
उसने ये सवाल 3 दफा किया, तीनों दफा ही आपने तेरी माँ के साथ जवाब दिया, चौथी दफा आपने कहा तेरा वालिद, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए ज्यादा मुशक्कत उठाती है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बाद 3 मर्तबा वालिदा की खुसूसी खिदमात का जिक्र किया गया और इसीलिए माँ का हक भी 3 दफा ज्यादा रखा। और जब इंसान 40 साल को हो जाता है और अपनी भरपूर जवानी और भरपूर समझ और अकल का मालिक हो जाता है, तो उस वक्त जो उनमें से नेक होता है तो वो अल्लाह से ये दुआ करता है, रब्बे औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु वस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर की और मेरी वालिदा पर की, जो दुनियावी नेमतें और खास तौर पर रूहानी नेमतें मुझे ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाएं, और मेरी औलाद में भी इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को भी नेक बना दे। और मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। ऐसे लोग, इनके अच्छे अमाल को हम कबूल कर लेते हैं और इनकी बुराइयों से हम दरगुजर कर देते हैं, वो जन्नत वालों में से होंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है जो इनके साथ किया गया था। और वो शख्स जो अपने वालिदैन से कहता है तुफ हो तुम पर, तुम मुझे इस बात से डराते हो कि मैं दोबारा निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे कबल बहुत सी बस्तियां गुजर चुकी, मैंने आज तक न देखा पुरानी बस्तियों में से कोई शख्स जिंदा होकर मेरे सामने आया हो, और तुम मुझे दिन रात कहते जाते हो कि अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। बड़ा तुफ है तुम पर। पहली आयत में हमने एक नेक बख्त औलाद का जिक्र पढ़ा था, अब ऐसी औलाद का जिक्र है जो कि मुशरिक थी और उनके वालिदैन उन्हें बार बार समझाते थे कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, और वो दोनों यानी उसके वालिदैन अल्लाह से फरियाद कर रहे थे तेरा बुरा हो तू ईमान ले आ, अल्लाह का वादा बरहक है। तो वो कहता है ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का कौल साबित हो गया, वो उन उम्मतों में दाखिल हो जाएगा जो उनसे कबल जिन्नों और इंसानों में से गुजर चुके। इस कौल से मुराद अल्लाह ताला का वो फरमान है जो शैतान के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया था। शैतान ने जब कहा था कि अल्लाह ताला मैं चूंकि इस इंसान की खातिर तूने मुझे मरदूद कर दिया है तो मैं इस इंसान से बदला लूंगा, मैं इसके आगे से आऊंगा, मैं इसके पीछे से आऊंगा, मैं इनके दाएं से आऊंगा और मैं इनके बाएं से आऊंगा, और अल्लाह ताला तो इनमें से अक्सर को अपना नाफरमान पाएगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उससे कहा था कि अच्छा मैं जरूर जहन्नम को तुझसे और जो तेरी पैरवी करेगा उनसे भर दूंगा। तो इस कॉल से मुराद अल्लाह ताला का ये वाला कॉल है। ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का वो फैसला साबित हो चुका, वो ऐसी उम्मतों में शामिल हो जाएगा जो उससे पहले जिन्नों और इंसानों में से गुजर चुकी हैं, वो खसारा पाने वाले हैं। हर एक के लिए उसके अमाल के बदले अमाल के लिहाज से दर्जे होंगे और अल्लाह ताला उनके अमाल का उनको पूरा पूरा बदला देगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। किसी को अमाल का बदला ना मिलना या जुर्म से ज्यादा सजा मिलना या दुनिया में होने वाली ज्यादती का मुदावा न होना, ये सब जुल्म की शक्लें हैं। अल्लाह की अदालत में ये जुल्म ना होगा। जितना किसी ने अमल किया उतना ही, ना कम ना ज्यादा, कम नहीं ज्यादा अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाएंगे। तो किसी को अमाल का बदला बिल्कुल ही ना मिले या जुर्म से ज्यादा सजा मिल जाए या जितनी नेकी की थी उससे कम बदला मिले या दुनिया में उस पर कोई ज्यादती हुई थी उसका मदावा ना हो, कयामत वाले दिन ऐसा जुल्म ना होगा। हर एक के लिए दर्जे हैं जो उन्होंने अमल किया और अल्लाह ताला उनको उनके अमल पूरे के पूरे देगा, अमलों का बदला पूरे के पूरा देगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर जहन्नुम पर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा तुम दुनिया की जिंदगी में पाकीज़ा चीजों में से
अपना हिस्सा ले चुके और इनसे मजे उड़ा चुके, तो आज के दिन तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। ये उन बातों का बदला है जो तुम जमीन में नाहक अकड़ रहे थे और जो तुम अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे। कुफ्फार और मुनकरीन आखिरत को उनके अच्छे अमाल का बदला दुनिया में मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने वो अमाल आखिरत में अजर हासिल करने की नीयत से किए ही नहीं थे। उन्होंने तो वो अमाल दुनिया की खातिर किए थे, लिहाजा उनके अच्छे अमाल का बदला उन्हें दुनिया में मिल जाता है और आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं, अल्लाह के अजाब के अलावा और कुछ भी नहीं होता। आज के दिन तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा और ये उन बातों का बदला होगा जो तुम जमीन में नाहक तकब्बुर करते थे और जो तुम अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे। और कौम आद के भाई हजरत हूद का जिक्र कीजिए, जब उसने अपनी कौम को अहकाफ के मुकाम में डराया और उनसे पहले बहुत सी कौमें, बहुत से डराने वाले उनसे पहले भी और उनके बाद भी गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। अहकाफ का मतलब है रेत के बड़े बड़े टीले, फैले हुए तौदे। ये आदे उला की बस्ती का नाम है जहां हजरत हूद मबऊस हुए। आज ये इलाका सऊदी अरब के वीरान सहरा रुबुल खाली में वाक़ है। हजरत हूद इसी बस्ती में अपनी कौम की तरफ भेजे गए थे। उन्होंने हजरत हूद की ने भी वही दावत दी जो पहले तमाम अंबिया ने दी थी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हें बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें हमारे खुदाओं से रोक दे? तो तू हमारे पास ले आ जिस अजाब की तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद कहने लगे, इस चीज का इल्म तो, अजाब का इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा रहा हूँ जो मुझे देकर भेजा गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक ऐसी कौम हो जो कि जाहिल हो। अंबिया के पास ये इख्तियार नहीं होता कि अंबिया अपनी कौम पर अजाब ला सके, ना उन्हें इस बात का इल्म होता है कि अल्लाह ताला ने इन पर अजाब कब लाना है। तो लिहाजा अंबिया आलिमुल गैब नहीं होते, उनके इख्तियारात में न मौजज़ा लाना होता है, न अजाब लाना होता है और ना वो इसके बारे में इल्म ही रखते होते हैं। तो लिहाजा हजरत हूद ने भी कहा कि अल्लाह ने अजाब लाना है, कब लाना है, लाना भी है या नहीं लाना, ये तमाम बातों का इल्म अल्लाह के पास है। मैं तो सिर्फ तुम्हें अल्लाह का वो पैगाम दूंगा जो मुझे वही के जरिए दिया गया है और जो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं देखता हूँ तुम इस पैगाम से मुंह मोड़ते हो। जब उन्होंने इस अजाब को देखा एक बादल की सूरत में जो कि उनके वादियों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, ये तो बादल है, ये हम पर बारिश बरसाएगा, बल्कि ये वो अजाब था जिसके लिए तुमने जल्दी मांगी थी, ये हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। अरसा से अहकाफ के इलाके में बारिश न हुई थी जिसके लिए कौमें आद तरस रही थी। इन लोगों ने जब काले स्याह बादल देखे तो झूम उठे, लेकिन वो बादल नहीं था, असल में वो अजाब था, हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को बर्बाद कर देती थी। आखिर उनका ये हाल हो गया कि उनके घरों के सिवा कोई चीज नजर न आती थी। इसी तरह हम मुजरिम कौम को सजा दिया करते हैं। ये हवा या ये आंधी इंतहाई तेज रफ्तार सख्त ठंडी थी जो 8 दिन और 7 रातें मुसलसल चलती रही। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप जब आंधी या बादल देखते तो आपके चेहरे पर फिक्र मालूम होता। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, लोग तो जब बादल देखते हैं खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब बादल आते हैं तो आपका चेहरे पे नागवारी होती है। आपने फरमाया, आयशा, मुझे खतरा लाहक हो जाता है कहीं इसमें अजाब न हो। एक कौम यानी आद पर आंधी का अजाब आया। उन्होंने जब बादल देखे तो कहने लगे, ये तो बादल है जो कि हम पे बारिश बरसाएगा। वो हर चीज को अपने रब के हुक्म से साथ
तहस नहस कर देती थी, तो वो लोग ऐसे हो गए कि उनके सिर्फ घर ही दिखाई देते थे। ये लोग उस आंधी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर घुस गए, लेकिन उस आंधी ने इन्हें वहां भी पटक कर रख दिया। इसी तरह हम मुजरिम कौम को सजा देते हैं, और हमने उनको जमीन में कुदरत दी थी। इतनी कुदरत हमने तुम्हें नहीं दी, यानी कुफारे मक्का को। कौम आद ताकतवर थे, जिस्मों के मजबूत थे, उम्रों के ज्यादा थे, इंतहाई खूबसूरत थे, लंबे कद के थे। हमने उन्हें जितनी कुव्वत अता की थी, इतनी कुव्वत हमने तुम्हें नहीं दी। और हमने उन्हें कान, आंखें और दिल दिया था, तो उनके कान, आंखें और दिल ने उन्हें कोई फायदा ना दिया जब उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया और उन्हें उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने इंसान को कान, आंखें और दिल इसलिए दिए हैं ताकि इंसान हक देखे, हक समझे, हक सुने और हक को कबूल करे। तो जब इंसान अल्लाह की आयत का इनकार कर दे तो फिर ये चीजें उसको बजाय फायदे के उल्टा नुकसान पहुंचा देती हैं और उनके दिलों पे फिर मोहर लगा दी जाती है। हमने तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सी बस्तियां हिलाक कर दी और हमने उनके लिए आयत को फेर फेर कर बयान किया था, शायद कि वो हदायत की तरफ लौट आए। तो उनकी उन हस्तियों ने क्यों ना मदद की जिन्हें उन्होंने अल्लाह के सिवा कुर्बत का जरिया बनाकर माबूद बनाया हुआ था, बल्कि वो उनसे खो गए, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। और यही नतीजा था उनके झूठ का और उन झूठे अकीदों का जो उन्होंने गढ़ रखे थे। उन सब का अपने माबूदों और बुतों के बारे में यह अकीदा था कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सफारशी हैं, और उनका ये ख्याल था कि दुनिया में भी जब हम पर कोई मुश्किल आएगी, कोई अजाब आएगा, तो ये हमें उस अजाब से बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर उनके ये माबूद सच्चे थे तो फिर जब हमने उन पर अजाब भेजा था तो उनके माबूदों ने उन्हें क्यों ना बचाया। जबकि हकीकत ये है कि उन तमाम कौमों के खंडरात आज भी ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अजाब के साथ उन्हें तहस नहस करके रख दिया। अगर उनके माबूद सच्चे थे तो उनके माबूदों ने उस वक्त उनको क्यों मदद ना की। जैसे दुनिया में मदद ना की, इसी तरह वो क़यामत को भी सिफारिश करने का इख्तियार कतई नहीं रखेंगे। और जब हमने तेरी तरफ जिन्नों का एक गिरोह आपकी तरफ फेर दिया जो कुरान को गौर से सुनते थे, तो जब वो इस मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। जब कुरान पढ़ा जा चुका वो अपनी कौम की तरफ फिर गए और उन्हें डराने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, एक दफा आप अपने चंद सहाबा के साथ उक्काज के बाजार जाने के इरादा से रवाना हुए। उन दिनों शैतानों को आसमानों की खबरें मिलना बंद हो गई थी और उन पर अंगारे फेंके जाते थे। वो जमीन की तरफ लौटे और कहने लगे, ये क्या हो गया, हमें आसमान की खबर क्यों मिलना बंद हो गई है और हम पर अंगारे क्यों फेंके जाने लगे हैं। जरूर कोई नई बात वाक़ई हो गई है जिसकी वजह से हमें आसमान की खबर मिलना बंद हो गई। ऐसा करो, तमाम मशरिक व मगरिब में फिर कर देखो कि वो नई बात क्या वाक़ई हुई है। उनमें से कुछ शैतान तिहामा यानी हिजाज की तरफ भी आए और आप तक पहुंच गए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला में थे और उक्काज के बाजार में जाने का कसद कर रहे थे। आप अपने सहाबा को नमाज फजर पढ़ा रहे थे। जब इन जिन्नों ने कुरान सुना तो कान इधर लगा दिए और फिर कहा, यही वो चीज है जिसकी वजह से हम पर आसमान की खबर मिलना बंद हो गई है। असल बात ये थी, अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम कुरान मजीद जमीन की तरफ नाजिल करना शुरू कर दिया था, इसीलिए आसमान का भी पहरा शदीद कर दिया गया था कि इस कुरान के अंदर कोई गड़बड़ या कोई कमी बेशी करने की जुर्रत न कर सके। तो इसी चीज को इन जिन्नों ने महसूस कर लिया। अब इन जिन्नों ने जब ये कुरान सुना तो ये वो वक्त है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का से मायूस होकर ताइफ की तरफ गए। ताइफ आप इसलिए गए थे कि शायद ताइफ वाले लोग आपकी दावत कबूल कर लें और आपको वहां से कुछ हमायती और मददगार मिल सके। लेकिन हुआ क्या, ताइफ वालों ने जो आपके साथ सलूक किया वो आप में से हर एक को इल्म है। आपको वहां पे इतना सख्त सदमा पहुंचा, इतनी सख्त वहां पे आजमाइश हुई कि वहां के लोगों ने न सिर्फ ये के साथ न दिया बल्कि उल्टा आपको इंतहाई तौर पर
परेशान भी कर दिया। अब वहां से जब आप वापिस आ रहे हैं तो नखला के मुकाम पर फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने आपकी तरफ ये जिन भेज दिए। आप अभी मक्का नहीं पहुंचे थे। नखला का मुकाम ताइफ और मक्का के दरमियान वाक़ है, और अल्लाह ताला ने फिर आपकी तरफ आपको वही के जरिए बताया। आप जब ये नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको इल्म नहीं था कि जिन ये कुरान सुन रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको वही करके बताया। ये सूरह जिन में आपने वही की और आपको बताया कि ए नबी, अगर इंसान तेरी बात कबूल नहीं कर रहे, अगर मक्का वाले, अगर ताइफ वाले तेरी बात कबूल नहीं कर रहे, तो हमने जिन्नों में से एक गिरोह पैदा कर दिया है जो न सिर्फ तेरी दावत कबूल करते हैं बल्कि अपनी कौम को उस दावत की तरफ खुद ही पैगाम भी देते हैं। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो गई। तो जब हमने तेरी तरफ जिन्नों का एक गिरोह आपकी तरफ फेर दिया, वो कुरान को गौर से सुन रहे थे। जब वो उसके पास हाजिर हुए तो वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, ये कुरान खामोश होकर सुनो। जब कुरान पढ़ा जा चुका तो वो डराने वाले बनकर अपनी कौम के पास वापस लौटे। उन्होंने जाकर अपनी कौम से कहा, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो कि मूसा के बाद नाजिल हुई है। वो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है और वो हक और सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत देती है। ए हमारी कौम, तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो, उस पर ईमान ले आओ। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात न माने तो वो जमीन में भाग कर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता और ना उसके अलावा उसका कोई दोस्त होगा। ऐसे लोग वाज़े गुमराही में हैं। ना सिर्फ इन जिन्हों ने खुद उस हदायत को कबूल किया बल्कि अपनी कौम को भी उसकी दावत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात के साथ कितनी ठंड पड़ती होगी कि जब मक्का वालों से आप मायूस हो गए, जब ताइफ वालों ने आपको तंग कर दिया, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए जिन्नों में से मददगार लश्कर पैदा कर दिए जो आपकी दावत को खुद फैला रहे हैं। ए हमारी कौम, यही जिन्होंने ये कुरान फजर की नमाज में सुना था, अपनी कौम को दावत दे रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ दावत देने वाले नबी की दावत को कबूल कर लो, इस पर ईमान ले आओ। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेगा। और अगर तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नबी की दावत को कबूल नहीं करते तो याद रखो, तुम अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकोगे, तुम अल्लाह से भाग के कहीं नहीं जा सकोगे और तुम्हारे अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं होंगे। और जो लोग अल्लाह की दावत को कबूल नहीं करते, यही लोग बाज़े गुमराही में होते हैं। वैसे जिन्नों की बात तो अलहदा रही, मैं इंसानों की बात करती हूँ। हमारे पास अल्लाह की बंदगी के अलावा कोई चारा नहीं है। किस तरह? देखें, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, हम उसके मोहताज हैं। हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के तमाम अमाल के लिए हम उसके मोहताज हैं। हम देखते हैं कि हमारी मर्जी नहीं चलती, मर्जी उस रब की चलती है और ये हर शख्स महसूस करता है। तो हमने वैसे भी, ये तो इस दुनिया में है जिसमें हमें थोड़ा सा इख्तियार भी दिया गया है। इस दुनिया में जैसे जाने के बाद ये इख्तियार भी हमें थोड़ी देर के लिए है, मौत तक के लिए। और इस दुनिया में भी हम महसूस करते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जहाँ पे हम अल्लाह के सामने मोहताज हैं, हमारी मर्जी नहीं चलती है, हम तकदीर के आगे बेबस हो जाते हैं। और ये तो दुनिया का मामला है जहाँ पे हमें इख्तियार दिया गया है। लेकिन जब मौत आ जाती है, मौत आने के बाद जब हम कब्र में चले जाते हैं, हमारे इख्तियार के मामले खत्म हो जाते हैं। कब्र में हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। कब्र में हमने किसका सामना करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। उसके बाद हश्र, उसके बाद हिसाब किताब, उसके बाद जज़ा और सजा, जन्नत दोज़ख। मुझे बताइए, इंसान क्या इसी बात के लिए इंसान क्या मजबूर नहीं है कि वो अल्लाह का फरमाबरदार है? इंसान के सामने एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का बंदा बन जाए। अल्लाह का बंदा अगर नहीं बनता तो फिर वो अल्लाह से भाग के कहीं नहीं जा सकता, अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता। तो एक ही तरीका है कि इंसान सीधी तरह अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार कर ले। और अगर वो ये फरमाबरदारी इख्तियार कर लेता है,
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے خزانے اس سے کھول دیتے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ ساری اللہ کی فرما بردار ہیں. اور جب ایک بندہ فرما بردار ہوتا ہے ساری کائنات اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں. اور جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو چونکہ یہ کائنات بھی ساری اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اس کائنات میں بھی اس کی زندگی اللہ تنگ کر دیتے ہیں. ظاہری طور پر اگرچہ اس کے پاس مال و اسباب اور زندگی کی چمک دمک کیوں نہ ہو، زندگی کا سکون اسے میسر نہیں آتا، اور یہ اسے چند دنوں تک یہ چمک دمک اسے ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم. آنکھیں بند ہوتے ہی عذاب شروع. تو یہ جو فرشتے، یہ جو جن ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو کہیں عاجز نہیں کر سکتے، تو صحیح بات ہے. حضرت انسان کا بھی یہی حال ہے. انسان کے لیے سیدھا راستہ ایک ہی ہے کہ وہ سیدھی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق قبول کرے اپنے دل کی ٹھنڈ کے ساتھ، اور اس راستے پر پورے خلوص نیت کے ساتھ چل پڑے. اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو وہ اللہ کو نہ تو دنیا میں عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ اس کے کوئی دوست ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ واضح گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور وہ ان کی پیدائش سے تھکا نہیں؟ کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اور جس دن کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ جہنم پر حق ہے یا نہیں؟ تم دنیا میں قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اب بتاؤ یہ دوزخ برحق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. اس وقت وہ جتنی مرضی رب کے سامنے فرما بردار ہو جائیں ان کی یہ فرما برداری قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کہے گا اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے. تو اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ مانگیے. رسول تو تمام ہی اولو العزم ہیں، لیکن ان میں سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ خاص طور پر اولو العزم ہیں، اور ان سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے شدید ترین آزمائشیں برداشت کی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہے، اور وہ پیغام لوگوں کو کما حق ہو پہنچاتے رہے جیسا کہ اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا. تو اے نبی آپ بھی صبر کیجئے جیسے حضرت نوح نے صبر کیا تھا، جیسے دوسرے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور ان کے بارے میں جلدی عذاب نہ مانگیے. جب وہ عذاب ان پر آ جائے گا جس دن وہ دیکھ لیں گے جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا تھا، ان کو یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں. آپ یہ بات پہنچا دینا ہے تو کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھی ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، نافرمان لوگوں کو ہی ہلاک کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے نافرمانوں میں شامل نہ فرمانا، اور ہم پر اپنی ہدایت اور اعمال صالح کی تمام نعمتیں پوری فرما دے. ہمیں اعمال صالح عطا فرما. اللہ تعالی ہم اب ہمارے چند دن رہ گئے ہیں یہاں پہ، اللہ ہم روز آتے رہے، روز جاتے رہے. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے اور اس عمل کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح